Hello everyone, this is Dr. Vikas. Welcome to VT Tutorials. Hope you all are doing good. I am beginning a new series of revision videos from Marrow, and today I will be revising traumatology from forensic medicine. Please leave your comments, those are very valuable to us, help us grow. So let's begin with this topic, traumatology. The first one is the mechanical injury, that is three types: blunt force, sharp force, and stab wound. Blunt force is again subdivided in the fourth part, that is abrasion, contusion, laceration, and fracture. And sharp force is incision and chop. Incision is a light cutting weapon, and chop wound is a heavy cutting weapon. In light cutting weapon means any scalpel or light cutting, and chop cutting, that means axe or any heavy cutting weapon. So stab wound is a pointed weapon, any kind of pointed weapon, that gives the stab wound. Depth is a maximum dimension here. And in the so here come to the blunt force, that is 4 divided into sub to 4 types. Abrasion, let's begin with the abrasion. Abrasion, it is medico-legally significant. So superficial injury, and there is no bleeding time. And also no scarring. So in the abrasion, no scarring, no bleeding, and heals in 1 week. Again divided sub 2 types: scratch abrasion and grazed abrasion. Scratch is, you can see 1, 2, 3. So the small scratch abrasion, just epithelium, and the grazed abrasion, that is also called gravel rash, brush burn, friction burn. And this happens due to the friction between skin and rough surfaces. Most common abrasion, and this is always or associated with the RTA, road traffic accident. Maximally you can see the rough surface has been from between the skin and the rough surfaces, multiple scratches over the wide areas. Next, caused by perpendicular force, and this was caused by tangential force. So perpendicular force, that means force coming from 90 degree. And pressure abrasion, imprinting or impact abrasion, patterned abrasion. So from the ligature, this is a ligature mark you are seeing here, this one. So pressure abrasion due to substance pressure, and ligature mark you are seeing, this one. And the second one is imprinting or impact abrasion due to momentary impact, recoil abrasion or whip mark that you are seeing here. A patterned abrasion, either pressure or imprint abrasion displays the pattern of weapon. Next, epithelial tag. Epithelium is scraped off and heaped, indicate tail end of the abrasion. So tail end of the abrasion determines direction of the force. How you are going to see? So this is like a grazed abrasion. See, this is grazed abrasion. From here the pressure has been started. Okay, so all epithelial tag is seen here. Okay, all epithelium will scrape and will accumulate here. So this is
epithelial tag. So this, what this is meaning, so determines the direction of the force. So what does it? Direction of the force that you are going to see here. Now next, aging of aberration. So color of swab. What gives color of swab? Gives time since injury. Time since injury. So how you, the mnemonic is this one, R cube and B cube. So what? Raw, reddish, reddish brown, brown and black. Raw, reddish, reddish brown, brown and black. So less than 12 hours. Less than 12 hours, the color will be raw. Of more than 12 hours, it will become reddish, and 2 to 3 days reddish brown, and 4 to 5 days brown, and black is 6 to 7 days. 12 घंटे से कम रॉ, 12 घंटे से ज़्यादा हो गया रेडिश हो जाएगा, 2 से 3 दिन में रेडिश ब्राउन हो जाएगा, और 4 से 5 दिन में ब्राउन, और 6 से 7 दिन में ब्लैक. नेक्स्ट, एंटीमॉर्टम एंड पोस्टमॉर्टम. मतलब एक बार जिंदा आदमी के साथ में और एक मरे आदमी के साथ में वुंड में क्या अंतर रहेगा. तो जिंदा आदमी एंटीमॉर्टम वुंड में 2 जोन्स रहते हैं, एक पॉजिटिव जोन और एक नेगेटिव जोन. दिस इज़ द पॉजिटिव जोन, दिस इज़ द नेगेटिव जोन. अब पॉजिटिव जोन में क्या हो रही, हीलिंग होगी, तो इसमें रीजनरेशन भी होगा और एंजाइम के लेवल्स भी बढ़ेंगे. तो दिस इज जोन ऑफ पॉजिटिव, वाइटल रिएक्शन, रीजनरेशन एंड एंजाइम विल बी इंक्रीज्ड. एंड द नेगेटिव जोन में क्या होगा, नेक्रोसिस ऑफ द सेल और एंजाइम के लेवल्स डिक्रीज हो जाएंगे. सो एंटीमॉर्टम विंड में क्या हो रही, हीलिंग. अब पोस्टमॉर्टम विंड, आदमी तो मर गया, अब जब मर गया तो उसमें चाहे काटो चाहे जो कुछ करो, नो वाइटल रिएक्शन, नो जोन, कोई रिएक्शन नहीं होगा. तो दिस इज हाउ एंटीमॉर्टम वर्सेस पोस्टमॉर्टम वुंड. नाउ कमिंग टू सेकेंड, दैट इज कंट्यूजन और ब्रूज. सो कंट्यूजन, दैट मीन्स अ ब्लंट फोर्स. इट कुड बी हैमर और एनी काइंड ऑफ नॉन कटिंग वेपन. So that is called blunt force, gives trauma to the directly skin, that is rupture of the dermal vessels. So what happens, extravasation of the blood will spill out or accumulate behind the skin, or extravasation of the blood or rupture of the muscles. So all the arteries and veins of the muscles will so next, so this is called contusion and hypostasis. Let's compare them. Contusion and hypostasis. Sorry, contusion and hypostasis. Contusion, hypostasis is settling of the blood or fluid in the lower part of the body due to gravity after death. जिंदा मरे आदमी में जो ग्रेविटी के कारण है, जो फ्लूइड अकोमुलेट होकर नीचे आता है ग्रेविटी के कारण, तो वो हाइपोस्टेसिस कहलाता है. कंट्यूजन में जो ब्लंट फोर्स के द्वारा, तो ब्लांचिंग क्या होगी, इसमें नहीं होगी, इसमें प्रेजेंट होगी. और एक्स्ट्रावेसेशन मीन्स इसमें तो ब्लड बाहर आएगा, मतलब एक्स्ट्रावेसेशन प्रेजेंट होगा कंट्यूजन में, ये इसमें एब्सेंट होगा. कलर चेंजेस कंट्यूजन में रहेंगे, इसमें नहीं रहेंगे. आदमी मर गया तो कोई कलर चेंज नहीं, जैसा है वैसे ही रहेगा. मार्जिन, इसकी इल डिफाइंड मार्जिन होगी, इसकी वेल डिफाइंड मार्जिन होगी. एंड साइड एनीवेयर ऑफ द बॉडी एंड डिपेंडेंट एरियाज. सो डिपेंडेंट एरियाज, आदमी लटका हुआ है, आदमी लेटा हुआ है तो पीठ पे आएगा. आदमी सीधा अगर किसी वजह से हैंगिंग पे रहा तो हाइपोस्टेसिस उसके पैरों में होगी या हाथों में होगी. सो नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कंट्यूजन. सो और ब्रूज, इंट्राडर्मल, डीप वूज, एक्टोपिक ब्रूज ऑन पैटर्न. इंट्राडर्मल इज सुपरफिशियल, डीप इज डिसकलरेशन ऑफ द इंजरी, स्किन एंड मसल्स, कलेक्शन ऑफ द ब्लड. एक्टोपिक ब्रूज, माइग्रेटरी पर कोटेड ब्रूज, अवे फ्रॉम द इम्पैक्ट. जैसे कि किसी का
सर पे चोट लगी, एक टॉपिक, एक तरफ से चोट लगी तो दूसरी तरफ उसका इम्पैक्ट आया अवे फ्रॉम द बॉडी। लाइक अगर एक जगह पे मारा गया तो उसका दूसरी जगह पे इम्पैक्ट आएगा। सर के पीछे मारेंगे तो आगे की ओर फ्रंटल लोब पे या फिर कान के पास या किसी आँख के पास, जैसे आँख के पास मारा इसमें तो कान पे मारा तो आँख के पास ये क्या हो जाएगा, ये ब्लड का अकोमुलेशन हो गया पेरी ऑर्बिटल एरिया में, तो ये ब्लैक आई हो गया, इसको रकून आई बोलते हैं। अब ये बैटल साइन है, तो बैटल साइन के कान के पास ब्लड का अकोमुलेशन, इकीमोसिस ऑफ द मैस्टोइड रीजन ड्यू टू फ्रैक्चर ऑफ द मिडिल क्रैनियल फोसा। तो मिडिल क्रैनियल फोसा के फ्रैक्चर से इकीमोसिस ऑफ द मैस्टोइड रीजन ड्यू टू, सो एंड ऑल्सो द ब्लैक आई यू हैव। नेक्स्ट पैटर्न ब्रूज, शोन पैटर्न striking surface of the weapon, six penny bruise, coin shaped six penny bruise, butterfly bruise and tram line railway like। so six penny, अब bruise मतलब कि see this one, six penny bruise, किसी ने अपने हाथ से किसी का गला दबाया, थ्रॉटलिंग किया, तो थ्रॉटलिंग जब कर रहा है तो चाइल्ड थ्रॉटलिंग में उसकी उंगलियों के निशान यहाँ पे और अंगूठे के निशान बनेंगे, तो वो सिक्स पेनी ब्रूज कहलाएगा। अब बटरफ्लाई क्या है, किसी भी बच्चे के पिंचिंग करी जाएगी, पिंचिंग किसी ने किया और दैट इज़ वेरी हार्ड, सो दैट विल गिव द बटरफ्लाई ब्रूज। ऑल्सो दिस इज डोनट ब्रूज, वेपन spherical surface। so and this one, the black eye, raccoon eye, and also bilateral spectacle hematoma, and this is the battle sign, diagnostic fracture of middle cranial fossa, fracture of middle cranial fossa, and the abdominal ectopic bruise you can see, the colon sign and paleum-like area, and gray Turner sign, bruises on the flanks. So these are the these bruises are away from the impacted area. Next, true and artificial bruise. So true caused by trauma, artificial bruise by irritant plant extract like plumgo or semicarpus or calotropis, any kind of from the plant, irritant plant, so this is artificial bruise। the site anywhere on the body, ट्रू में कहीं भी आदमी मारा, किसी आदमी ने कहीं भी मार दिया, और इसमें ब्लिस्टर इसमें नहीं बनेंगे क्योंकि यहाँ पे बन जाएंगे, यहाँ पे ब्लिस्टर प्रेजेंट रहेंगे आर्टिफिशियल में, और ये एक बार MCQ भी आ चुका है। तो अब कंटेंट में इसमें ब्लड निकलेगा क्योंकि मारा गया है, ईचिंग इसमें एब्सेंट होगी, इसमें प्रेजेंट होगी, इन्फ्लामेटरी कंटेंट इसमें ब्लड है और इसमें इन्फ्लामेटरी फ्लूइड, एरिक सीरम बनेगा इसमें। सो यू हैव टू सी दिस वंस। नेक्स्ट कमिंग इज फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्रूजिंग, मोर ब्रूजिंग, लेस ब्रूजिंग। अब मोर ब्रूजिंग क्या है, जहाँ की स्किन ज़्यादा वैसी होगी, ज़्यादा ढीली होगी, काइंड ऑफ लाइक जैसे कि इसमें देखें तो एक्सट्रीम एज, बच्चे हैं, एल्डरली है, और प्री डिजीज़ के कारण जिनकी बूढ़ों की स्किन लूज रहती है, वैसी रहती है, जिनकी मुलायम स्किन होती है, वहाँ पे ब्रूज होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। फीमेल्स की भी स्किन बहुत मुलायम रहती है, तो उसमें भी ब्रूज होने के चांसेस रहते हैं। और आईलिड, स्क्रोटम एंड फेस, तो दीज आर द लैक्सिटी इज इंक्रीज एंड हाई वेस्कुलरिटी हाई होती है, तो मोर ब्रूज होगा। लेस ब्रूज जहाँ पे गुड मसल टोन है, एडल्ट है, एथलीट्स है, फर्म फाइब्रस टोन है, तो वहाँ पे पाम एंड सोल्स में ब्रूज होने के चांसेस कम हैं। नेक्स्ट, एजिंग ऑफ कंट्यूजन। एजिंग ऑफ कंट्यूजन इज, so what are the method used? Method is color of bruise is most common, histology, spectrophotometry and pearl stain reaction. This is the
this is the kind of that iron in here pulse iron that we see. Visualize ferric iron in tissue sample, hemosiderin and non-hemo iron we see here in the pulse reaction. And so main aging of bruise by color, type of hemoglobin, oxyhemoglobin, deoxyhemoglobin, hemosiderin, biliverdin, bilirubin. So hemoglobin कलर इधर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रेड कलर होएगा, फ्रेश है ब्रूज. अगर डीऑक्सो हीमोग्लोबिन है तो कलर ब्लू हो जाएगा और फ्यू आवर्स 3 दिन के अंदर, कुछ घंटों से 3 दिन के अंदर का है तो ब्लू है. अगर वही ब्राउन हो गया तो 4 दिन का हीमोसिड्रिन बनेगा. और बिलीवर्डिन ग्रीन है, 5 से 6 दिन हो गया. बिलिरुबिन येलो है, 7 से 12 दिन हो गया. मेनली सो हाउ यू विल रिमेंबर, RBBY, RBBGY, RBBGY. Okay, and this is here you can see red at first oxyhemoglobin, bluish black to brown hemosiderin 4 days, yellow bilirubin 3 1 2, deoxyhemoglobin 3 days. So first is, this is first, second red blue few hours 3 days, 3 black to brown hemosiderin 4 days, greenish hematodine biliverdin 5 to 6 days, yellow bilirubin, and this is the normal 2 weeks. After 2 weeks, multiple bruises of different colors, sign of child abuse, battered baby syndrome. And bruises with no typical color changes, subconjunctival hemorrhage, red yellowish, normal exposure to atmospheric subdural hematoma. Next, multiple bruises. So battered baby syndrome, sign of child abuse, multiple bruises in a different color in a child. Multiple bruises, different color in a child abuse called battered baby syndrome. Laceration, incision, stab wound. Laceration and incision. So laceration, margin are irregular. Incision, देखो laceration में किसी heavy cutting like any kind of heavy, and incision is a like from the scalpel, medical, very fine cut that we are giving, that is given. So margins will be irregular to the laceration and clean cut to the incision. Fracture, features will be swallowtails, and tailing will see here, we will see the tailing. So like from here to here it is given, so you see this is tailing, this is tailing. So this is tailing. Next, floor and hair bulb. Here it will be crushed and here it will cut, and you see the images. This is this. There is no tailing, here is his tailing, and the swallow tailing. Next, type of laceration: split laceration, avulsion, tear, stretch. Split, also known as incised looking laceration. Mechanism is skin crushed between two hard object or bony prominences. This is split. And avulsion, इसमें कहते हैं खाल उतार दिया, तो flaying will be seen here, avulsion हो गया. Sharing of force, tangential force will be applied, separation skin, deeper tissue. Example, degloving injury. This is the degloving injury.
and degloving injury or scalping injury. Tear laceration caused by semi sharp object. Stretch, ओवर स्ट्रेचिंग, स्किन को इतना खींच दिया कि वो फट गई, तो ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द स्किन. और टीयर लेसरेशन कॉज्ड बाय सेमी शार्प ऑब्जेक्ट. सो incised wound, lacerated looking like skin incision, lacerated looking like incision seen in the areas with skin fold, scrotum and axilla. Injury with knife having serrated edge, hesitational cuts. These are hesitational cuts. Also known as tentative intentional feeler or trial cuts, multiple superficial linear cuts, site of accessible part of the body, indicate suicidal attempt. Beveling. This is beveling. Blade enter obliquely into the skin, undermine edges, indicate homicide. Now let's go to stab wound. Punctured, penetrate, perforating. So how you understand puncture? So this is the skin and this is the body. Here is the man. So punctured means this is the stab wound into the tissue. This is punctured. Penetration, the knife is coming and this is penetration. What is perforation? This is perforation. क्या हुआ, चाकू को हमने थोड़ा सा लगाया, स्टेप, इंजरी टू द टिश्यू, सिर्फ टिश्यू पे इंजरी हुई. इसमें ओनली एंट्री वुंड सीन. अब इसमें क्या है, ओनली इनटू द बॉडी कैविटी, मतलब एंट्री वुंड बस है, बॉडी कैविटी के अंदर चाकू चली गई. अब परफोरेटिंग मतलब बॉडी एक तरफ से तो घुस रही, दूसरी तरफ से बाहर निकल गई, तो एंट्री और एग्जिट दोनों बराबर दिखेगा. ये हो गया स्टैब वुंड. नेक्स्ट, टाइप ऑफ वेपन बेस्ड ऑन शेप ऑफ द स्टैब वुंड. शेप ऑफ द, सो वेज, ट्रायंगुलर, पियर शेप्ड, फिश टेलिंग. इलिप्टिकल शेप. वेपन क्या होगा, सिंगल नाइफ, डबल नाइफ. अब डबल, दोनों तरफ अगर चाकू में धार है, इसमें एक तरफ चाकू की धार है, तो इसमें आप एक तरफ का ब्लंट एंड देखेंगे. दिस इज ब्लंट एंड, दिस इज एक्यूट एंड. सो दोनों तरफ चाकू में धार है, तो हिल्ट मार्क, दिस इज हिल्ट मार्क, पैटर्न अब्रेजन ब्रूज seen in complete penetration, helps determine direction of the force, type of weapon. Next, line of Langer and cleavage lines. You see this one, these are. So determine the extent of the gapping. So stab parallel to the Langer hind, gapping will decrease. Stab perpendicular of the Langer hinds, gapping will increase. Okay, if stab wound is parallel, गैपिंग विल डिक्रीज. पैरेलल है, उनके साथ में है, तो गैपिंग नहीं रहेगी ज़्यादा. अब परपेंडिकुलर रहेगा तो हील करने में ज़्यादा टिश्यू लगेगा, तो गैपिंग विल इंक्रीज हो जाएगी. नाउ नेक्स्ट इज दिस, जापानीज योद्धा. he have lost or any something else, so he is cutting himself, and this is suicidal stab wound of the abdomen caused by evisceration, circular collapse. So concealed, next is concealed punctured wound seen in axilla, nostril, fontanelles and nape of the neck. Concealed punctured wound. Stab injury to the heart. This is fertility of the stab injury. Right atrium is more to left ventricle. Fatality is 1 by thickness of the heart chamber. Next, chop wound and defense injury.
So this is chop wound by any heavy cutting weapon like axe. This is chop wound, cut fracture. You see here, this is cut fracture. The bone has been crushed, and also so deep gaping wound caused by heavy sharp weapon. Margin will be irregular. Floor crushing and fracture of the bone, usually suggestive of homicidal. Okay. Defense cut indicate homicidal type of active and passive. Seen in the palm, a first wave of space, and seen in the forearm wrist. अब सामने से कोई अपने खुद में काटा है तो दिस इज पैसिव है, अपने को बचाने के लिए किसी ने किया तो। अभी so first is next regional injuries, skull vault fracture, fracture and image, ये टाइप ऑफ स्कल फ्रैक्चर हैं सारे, एक बार में देख लेंगे सारा स्कल फ्रैक्चर। अभी इसमें क्या है कि अगर सर पे चोट लगी किसी भी चीज़ से, हैवी से, हैमर से या कुछ भी जैसे, तो फिशर फ्रैक्चर बनेगा। ये देखो आप, एक फिशर टाइप का बन रहा है, एक लाइन सी, तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्रैक्चर बनता है। दिस इज फिशर हेयर लाइन काइंड ऑफ फ्रैक्चर। दिस इज फिशर फ्रैक्चर कॉज्ड ड्यू टू वेपन विद द ब्रॉड स्ट्राइकिंग सर्फेसेस। ओके, सो नेक्स्ट इसमें क्या है, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, किसी हैमर से इतना तेज मारा कि वहाँ की हड्डी अंदर घुस गई तो डिप्रेस्ड हो गया। कॉज्ड बाय ड्यू टू वेपन विद द स्मॉलर स्ट्राइकिंग सरफेस लाइक हैमर। स्मॉलर, इसमें स्मॉलर स्ट्राइकिंग सरफेस है, हैमर से मारा, ऑल्सो नोन एज सिग्नेचर फ्रैक्चर। वेपन कैन बी आइडेंटिफाइड लाइक दिस, दिस इज द वेपन ऑल्सो कैन बी आइडेंटिफाइड। पॉन्ड फ्रैक्चर, अभी उसी से बच्चे के सर पे मार दिया। बच्चे के सर पे क्या होगा कि उनकी तो सर कमज़ोर होता है तो वो डिप्रेस्ड हो जाएगा, सर ही दब जाएगा। ऑल्सो नोन एज इंटेंडेंट फ्रैक्चर, पिंग पॉन्ग फ्रैक्चर सीन इन द इन्फेंट्स, न्यूबॉर्न चाइल्ड लेस देन 4 ईयर। रिमेंबर, लेस देन 4 ईयर बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट स्कल। नेक्स्ट गटर फ्रैक्चर, एक बुलेट आई, बुलेट सीधा गोली लग के गई तो सर के बगल से निकल गई तो दिस बिकम्स गटर, सो गटर फ्रैक्चर। कमिसर मतलब कि बहुत, ऑल्सो नोन एज सुपरवेब एंड मोजाइक फ्रैक्चर, मल्टीपल फ्रैक्चर सेगमेंट विदाउट डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे ऐसी चोट लगी कि मल्टीपल फ्रैक्चर लाइंस बन गई, सो दिस इज कम्यूटेड फ्रैक्चर। अब डायस्टैटिक फ्रैक्चर, डायस्टैटिक फ्रैक्चर विद द सुचर लाइन, सुचर लाइन ही खुल गई और वही फ्रैक्चर है तो इसे कॉल्ड डायस्टैटिक फ्रैक्चर। सारा फ्रैक्चर क्लियर हो गया इसमें। तो अब नेक्स्ट स्कल बेस्ड फ्रैक्चर। अब देखो इसमें क्या है कि आदमी पैराशूट से उतरता है, अब पैराशूट से उतर के सीधा वो ज़मीन पे कैसे लैंड करता है, अपने पैर से, अपनी पूरी बॉडी को ज़मीन पैर पे देता है। अब देता है तो क्या, फॉल फ्रॉम द हाइट, लंबे से गिरा, लैंड्स ऑन द फीट, लैंड्स ऑन द बटक, तो सारा प्रेशर पैर से लेकर के ऊपर जाएगा तो सीधा जाके फोरामेन मैग्नम पे पड़ेगा, इस एरिया पे। फोरामेन मैग्नम में तो ये जो एरिया है इसमें इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा कि यही ऊपर हो जाएगा तो पूरा इतना एरिया टूट जाएगा, तो ये क्या होगा, ये फ्रैक्चर हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं रिंग फ्रैक्चर। ये रिंग पूरी फ्रैक्चर हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। तो फ्रैक्चर इन बेस्ड ऑफ द स्कल अराउंड द फोरामेन मैग्नम, तो ये हो गया रिंग फ्रैक्चर। अब नेक्स्ट हो गया टाइप 1 हिंज फ्रैक्चर। इसमें क्या, फ्रैक्चर लाइन फ्रॉम द टेम्पोरल रीजन रीचेस अपोजिट साइड। मोटरसाइकिल वाले बैठते टेढ़े हैं तो वो जब चलाते हैं तो उनका ये हिंज फ्रैक्चर हो जाता है। नेक्स्ट पुपेज रूल, इसमें कोई भी फ्रैक्चर लाइन एक से दूसरे को क्रॉस नहीं करती, मतलब पुराने फ्रैक्चर लाइन को क्रॉस नहीं करती। अब ये लाइन है तो इसमें क्रॉस नहीं कर रही है, सो दिस इज पुपेज रूल। नेक्स्ट कूप एंड काउंटर कूप इंजरी। कूप इंजरी एंड काउंटर कूप। काउंटर कूप इंजरी मतलब जहाँ पे चोट लगी उधर पे इम्पैक्ट हो रहा है, इंजरी एट द साइट ऑफ इम्पैक्ट।
काउंटर कूप मतलब इंजरी एक कान में जोर से मारा कंटा तो दूसरे कान की तरफ दर्द हो रहा, इंजरी दूसरे कान की तरफ आई। मतलब जैसे क्लास में टीचर होता है, पीछे से सर में मारा, आगे की तरफ वो फ्रंटल लोब में प्रॉब्लम आ गई, चोट लगी ऑक्सीपिटल में, लेकिन जो कंट्यूजन और ब्रूज हुआ वो फ्रंटल लोब में हुआ। तो इसमें क्या सीवियरिटी, इसमें तो कूप में तो माइल्ड होती, कम होती, कि जहाँ पे चोट लगी उधर ही हो रहा है। अब काउंटर कूप में सीवियर होता है, इतना तेज मारा कि पीछे का लगा ही नहीं, आगे का लगा, तो बहुत तेज उल्टा काउंटर कूप दूसरी तरफ चोट लगी। ऑक्सीपिटल इम्पैक्ट क्या होता है, ऑक्सीपिटल लोब कंट्यूजन है तो फ्रंटल लोब कंट्यूजन इसमें होएगा। मोस्ट कॉमन साइट है ये काउंटर कूप। अब फ्रंटल इम्पैक्ट में फ्रंटल लोब कंट्यूजन, इसमें कुछ नहीं होगा। टेम्पोरल इम्पैक्ट, टेम्पोरल लोब ऑफ वन साइड, टेम्पोरल लोब ऑफ अपोजिट साइड, एंड इसमें कॉन्ट्रालेटरल सरफेस ऑफ इप्सिलेटरल लोब। ठीक, नेक्स्ट इंट्राक्रैनियल हेमरेजेस। सो यू नो इडली, EDH, SDH, SAH। एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज, सब ड्यूरल हेमरेज, सब एरेक्नोइड। एक्स्ट्रा ड्यूरल में क्या है कि इस ऐसे बनेगा, here you see this is extradural hemorrhage, this is and this one. So let's go begin. Least common intracranial, this one is the least common. The most common is subarachnoid hemorrhage. Trauma to the temporoperioorbital region and pterion में. Type of कूप इंजरी, जहाँ पे चोट लगी उधर ही इम्पैक्ट हो रहा है। टाइप ऑफ कूप इंजरी है पेराइटल रीजन टेरियन। फ्रैक्चर ऑफ टेम्पोरल बोन, रप्चर ऑफ मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। EDH में क्या है, रप्चर ऑफ मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। SDH में क्या है, रप्चर ऑफ ब्रिजिंग वेन्स एंड ड्यूरल वीनस साइनसेस। और सब एरेक्नोइड ह्यूमरेज में पूरे ब्लड फैले तो बेरी एन्यूरिज्म हो गया, AV मालफॉर्मेशन हो गया, ट्राउमा हो गया, स्ट्रोक हो गया, इस कोई भी कारण हो सकता है इसमें से, चारों में से। तो EDH में मेनली मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, SDH में ब्रिजिंग ऑफ वेन्स, और इसमें बेरी एन्यूरिज्म, AV मालफॉर्मेशन और ट्राउमा और स्ट्रोक। नाउ नेक्स्ट, ब्लीड इन द एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस में ब्लीड होगा, ब्रेन स्टेम कंप्रेशन हो जाएगा इसमें। डेथ ड्यू टू रिस्पायरेटरी फेल्योर होगी, ये याद रख लीजिएगा। इसमें EDH में डेथ कहाँ से होती है, रिस्पायरेटरी फेल्योर से होती है। मिनिमम 35 ml ऑफ द ब्लड क्लिनिकली फीचर्स डज नॉट क्रॉस सुचर लाइन्स। सो एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज डज नॉट क्रॉस सुचर लाइन, और यहाँ पे इट क्रॉसेस सुचर लाइन, दिस डज नॉट क्रॉस सुचर लाइन। अब ये सब ड्यूरल हेमाटोमा हेमरेज, रिस्क फैक्टर क्या है इसका, रिस्क फैक्टर ABC है। ABC क्या, एज्ड पर्सन विद माइनर ट्राउमा। B मतलब बॉक्सर, C मतलब चाइल्ड मतलब शेकन बेबी सिंड्रोम, बच्चों को बहुत ज़्यादा शेक कर दिया, शेकन बेबी सिंड्रोम, उसकी वजह से सर में हेमरेज हो गया, वो SDH हो गया। अब सब एरेक्नोइड हेमरेज, इसमें पहले से एन्यूरिज्म था वो फूट गया, AV मालफॉर्मेशन था वो प्रॉब्लम हो, कोई ट्राउमा हो गया, कोई स्ट्रोक हो गया, तो SAH हो गया। इसमें इसका मेनली इम्पेंडिंग रप्चर, थंडर क्लैप हेडेक, वर्स्ट दुनिया का सबसे ज़्यादा ख़राब हेडेक, थंडर क्लैप हेडेक, कुछ भी इस टाइप का होगा तो सब एरेक्नोइड हेमरेज है। इसमें एन्यूरिज्म रप्चर है, सीजर, कोमा, लंबर पंक्चर, और लंबर पंक्चर में क्या हो, ज़ैंथोक्रोमिया मिलेगा। और नेक्स्ट हियर इज द सी बाई कॉन्वेक्स ओपेसिटी, दिस इज EDH, एंड कंसेंट्रिक ओपेसिटी, क्रीसेंट्रिक ओपेसिटी किसमें देखी जाएगी, SDH में, सबड्यूरल हेमेटोमा में, हाँ सब एरेक्नोइड। कॉनकेवो कॉन्वेक्स ओपेसिटी, बाई कॉन्वेक्स होगी EDH में, SDH में कंसेंट्रिक कॉनकेवो कॉन्वेक्स ओपेसिटी, और इसमें कुछ नहीं। एक चीज़ और,
पानी डालने से हीमरेज क्लियर्स आफ्टर पोरिंग वाटर, ये एसडीएच में देखा जाएगा। हीमरेज रिमेन्स इंटैक्ट आफ्टर पोरिंग, अगर पानी डालने से ब्लड साफ हो गया ब्रेन का तो वो एसडीएच है, और अगर पानी डालने से ब्लड साफ नहीं हुआ तो इसका मतलब हीमरेज क्या है, सबअरेक्नोइड है। अब ल्यूसिड इंटरवल पे आ जाइए। ल्यूसिड इंटरवल जो है पीरियड ऑफ कॉन्शियसनेस है बिटवीन टू पीरियड ऑफ अनकॉन्शियसनेस। इसमें एक बड़ी बात है कि ये तो ईडीएच में देखा जाता है। पहली बात तो इसमें मेडिको लीगल इम्पॉर्टेंस ये है कि अगर डेथ ड्यू टू फेल्योर ऑफ डायग्नोसिंग, अगर आप डायग्नोस नहीं कर पाए, सामने पेशेंट आया और आप डायग्नोस नहीं कर पाए कि इसको ल्यूसिड इंटरवल है, तो ये मेडिकल नेग्लिजेंस में आपको पनिशेबल है अंडर 106 भारतीय न्याय संहिता में। सो रिमेंबर दिस व्हेन यू आर इन ओपीडी और इमरजेंसी और एनीवेयर, look this kind of patient. If you get it, do not, you cannot. So next, patient can provide valid evidence in this lucid interval time period. Patient can provide valid evidence and will is criminally liable. Next, most common intracranial lesion is cerebral contusion. Okay. Next, ट्रांसपोर्टेशनल इंजरी, मतलब गाड़ी से आदमी लड़ेगा तो उसको चोट कैसे कैसे लड़ेगी, कैसे कैसे हो क्या होगी, अब इसमें सब देखते हैं। अब देखिए इसमें सब टाइप का है। अब देखिए आदमी यहाँ पे खड़ा है, दिस इज मैन एंड दिस इज कार, दिस इज कार। अब आदमी यहाँ पे खड़ा है, अब ऐसे लड़ेगा तो पहले तो इसके बम्पर पे लगेगा, पहले इसके बम्पर लगेगा तो क्या होगा, फर्स्ट इम्पैक्ट विद व्हीकल, इम्पैक्ट से पहले व्हीकल से इम्पैक्ट होगा तो इसमें क्या होगा, प्राइमरी इम्पैक्ट इंजरी क्या होगी, बम्पर इंजरी होगी, एब्रेजन हो जाएगा, कंट्यूजन, लेसरेशन, बम्पर फ्रैक्चर, लोअर लिम्स। सीधा पैर पे लगा तो लोअर लिम्ब क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया, ये इतनी सारी इंजरी हो गई, पहला इम्पैक्ट है। अब सेकेंड इम्पैक्ट क्या होगा, विद व्हीकल, सेकेंडरी इम्पैक्ट इंजरी, ये इसके अब ग्राउंड इम्पैक्ट है, टर्शरी इम्पैक्ट, फिर सेकेंडरी इंजरी, एक्सटेंसिव एब्रेजन है। अब बताते हैं आगे। अब देखिए क्या है कि सीरियल नंबर 1, विंड शील्ड, स्पैरो फुट इंजरी, मल्टीपल कट लेसरेशन एक्सपोज टू द बॉडी ड्यू टू ब्रोकन ग्लास। जब आदमी इधर लड़ेगा तो ये स्पैरो फुट मार्क, ये देख रहे हो स्पैरो फुट, चेहरे पे जो शीशे लगेंगे इस विंड शील्ड के, जो आगे के जो शीशा होता है वो गाड़ी का लगेगा चेहरे पे, तो ऐसा टाइप का स्पैरो फुट मार्क इंजरी बनेगी। तो विंड शील्ड इंजरी पहला नंबर, मल्टीपल कट लेसरेशन और ड्यू टू ब्रोकन ग्लास। अब विप्लाश क्या है, विप्लाश ये है कि हाइपर एक्सटेंशन और हाइपर फ्लेक्शन। गाड़ी जब अचानक से ब्रेक लगेगा तो जो बैठा हुआ कार के अंदर जो आदमी है उसका सर बहुत तेज़ से पीछे जाएगा और बहुत तेज़ से आगे आएगा, तो हाइपर एक्सटेंशन एंड हाइपर फ्लेक्शन, वाइस वर्सा ऑफ द नेक। मोर डेंजरस, व्हाट इज मोर डेंजरस, मोर डेंजरस इज हाइपर एक्सटेंशन। नेक्स्ट, सीट बेल्ट इंजरी। सीट बेल्ट इंजरी में मेनली ऑर्गन कहाँ होता है, मीजेंट्री इज मोर प्रोन, सबसे ज़्यादा मीजेंट्री में इंजरी होती है। सीट बेल्ट ब्रूज बनेगा, मीजेंट्री में ज़्यादा इंजरी होएगी। और चांस ऑफ फ्रैक्चर, ट्रांसवर्स वर्टिब्रल फ्रैक्चर ड्यू टू हाइपर फ्लेक्शन। अभी बताते हैं, दिस इज चांस फ्रैक्चर, दिस इज सीट बेल्ट और दिस इज विप्लाश, दिस इज हाइपर एक्सटेंशन, दिस इज हाइपर फ्लेक्शन। सर अगर बहुत तेज से आगे आएगा तो हाइपर फ्लेक्शन, पीछे गया तो हाइपर एक्सटेंशन। पीछे वाला ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि सीधा टूटने का खतरा है। तो दिस इज चांस फ्रैक्चर, ट्रांसवर्स वर्टिब्रल फ्रैक्चर हो जाएगा, ये वर्टिब्रल, ट्रांसवर्स वर्टिब्रल फ्रैक्चर, चांस फ्रैक्चर।
नाउ डैशबोर्ड, डैशबोर्ड आगे का लड़ेगा, पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ हिप हो जाएगा। स्टीयरिंग व्हील से उसके चोट लगेगी तो पैटर्न ब्रूज बनेगा, स्टीयरिंग व्हील का पैटर्न बनेगा। फ्रैक्चर ऑफ स्टर्नम, स्टर्नम आगे की टूट जाएगी। एओर्टिक इंजरी भी हो जाएगी। एओर्टिक इंजरी होगी तो क्या करेगी, लैडर रिंग टियर। कार पैडल्स, कार का पैडल तो एंकल, एंकल की फ्रैक्चर हो जाएगा। इंजरी सस्टेन्ड बाय ड्राइवर ओनली, फ्रंट सीट पैसेंजर ओनली और बोथ। तो अभी नेक्स्ट आ जाएंगे नोट, कंकशन, टेम्पोररी स्टॉपेज ऑफ द फंक्शन सीन इन द। अभी ये तो बाहर की चोट लगी, अब अचानक से इतना ज़्यादा चोट लगेगा तो हार्ट काम करना हो सकता है बंद कर दे, स्पाइनल कॉर्ड ही रेलवे लाइक स्पाइन हो जाए, टूट जाए। और रेटिना में भी जो है ये बर्लिन्स ब्लंट फोर्स इतना ज़्यादा आँख में लगेगा कि आँख की जो रेटिना है और वहाँ पे वो फोटो रिसेप्टर्स हैं, फोटो रिसेप्टर ही काम करना बहुत, फोटो रिसेप्टर में बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। और स्पाइनल कार्ड में ये रेलवे स्पाइन हो जाएगी। अब हार्ट काम करना बंद कर दे मतलब कोमोशियो कॉर्डिस हो जाएगा। कोमोशियो कॉर्डिस मतलब इसमें बेक्स ट्रायड, बेक्स ट्रायड क्या है, मफल्ड हार्ट साउंड, इंक्रीज जेवीपी एंड हाइपोटेंशन। इसी दिस इज सीन इन कार्डियक टेम्पोनाड और मेनी थिंग्स। सो मोस्ट कॉमन मैनेजमेंट इज पेरियोकार्डियोसेंटेसिस। अब नेक्स्ट स्टार्ट विद द थर्मल इंजरीज। थर्मल इंजरीज, सो थर्मल कैसी इंजरी होगी, या तो ठंडा लगेगा तो ज़्यादा गर्म लगेगा। अगर कोल्ड इंजरी हुई तो क्या होगा, हाइपोथर्मिया हो जाएगा। ज़्यादा गर्म हो गया तो हीट रिलेटेड सिंड्रोम हो जाएंगे। लोकल इफेक्ट क्या होगा, या तो ड्राई कोल्ड होगा या तो मॉइस्ट कोल्ड होगा। ड्राई कोल्ड, अगर सूखा ड्राई कोल्ड है तो फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगी। मॉइस्ट कोल्ड लगेगा तो ट्रेंच फुट या इमर्सन फुट बन जाएगा, ये है ट्रेंच फुट। अब ड्राई हीट रहेगा तो जल जाएगा, मॉइस्ट हीट रहेगा तो स्काल्ड हो जाएगा। हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया लेस देन 35 डिग्री, बॉडी कोर टेम्परेचर इज लेस देन 35 डिग्री, commonly affects elderly, newborn, alcoholic and hypothyroid patient also. 4 people: elderly, newborn, alcoholics, hypothyroid patient. Less than 32 degree, less than 32 degree, here shivering will be stopped, no shivering will be feeling. And more less than 30 degree, less than 30 degree, hypothalamus will stops working, hypothalamus will stops functioning. So in the severe hypothermia, in the severe hypothermia, severe hypothermia, two things will happen. First, paradoxical undressing and hide and die syndrome, or terminal borrowing also called. So what are these? This is paradoxical undressing, that means sudden feels intentionally hot and failure of vasoconstriction. इसमें जो ब्लड की जो वेसल्स हैं, जो ब्लड है वो अचानक से वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं हो पाएगा तो वो फेल हो जाएगा सिस्टम। तो ब्लड में अचानक से पूरी बॉडी में, स्किन में सब जगह ब्लड फैलेगा, फेल्योर ऑफ वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, तो वैसो डायलेशन हो जाएगा, तो पूरी स्किन, पूरी बॉडी में ब्लड जाएगी, तो उसको अचानक से बहुत ज़्यादा गर्म लगेगी। अचानक से इतना ज़्यादा गर्म लगेगा उसको, उसके पसीने छूटने लगेंगे। दिस इज कॉल्ड पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग। सडन फील्स इंटेंशनली हार्ट, फीचर ऑफ वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। अब नेक्स्ट आ जाओ, हाइड एंड डाई सिंड्रोम। अब उसको इतनी ज़्यादा ठंडी लगेगी कि ह्यूमन की जो मेन बेसिक है, मनुष्य वो क्या करेगा, वो क्रॉल करेगा, वो इतना ज़्यादा ठंडी में क्रॉल करेगा और छुपने का प्रयास करेगा इनक्लोज्ड स्पेसेस में, बेड के पास, फर्नीचर के पास, अपने आप को खींचेगा, दबाएगा, तो क्या करेगा, हाइड एंड डाई, टर्मिनल बोरोइंग। सो इसमें मेंटल स्टेटस अल्टर्ड हो जाएगा और बिफोर डेथ।
एंड द सो नेक्स्ट अभी आ जाते हैं आउटोप्सी फाइंडिंग। आउटोप्सी फाइंडिंग में क्या मिलेगा? पिंक हाइपोस्टेसिस एंड विचिंसी ब्लीडिंग स्पॉट इन द विचनेविस्की ब्लीडिंग spot in the stomach. Treatment reworming. Next, frostbite due to exposure of freezing temperature. Site periphery. फ्रॉस्टबाइट कहाँ होगा? या तो उंगलियों में होगा, तो या फिंगर में होगा, टिप में होगा, नोज ईयर लोब कहीं भी हो सकता है। रिवार्मिंग करेंगे इसको कितने डिग्री टेम्परेचर में? 37 से 40 डिग्री टेम्परेचर में। ये देखिए, ये ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, ग्रेड 4 है। दिस इज फ्रॉस्टबाइट। नेक्स्ट, हीट क्रैम्प्स। अब हीट क्रैम्प्स में क्या है? स्वेटिंग कॉज लॉस ऑफ सोडियम। सो ये मसल क्रैम्प्स होंगी। जब बहुत ज़्यादा सोडियम बॉडी से निकल जाएगा तो मसल क्रैम्प्स होगा, तो हीट क्रैम्प्स हो जाएंगे। अब हीट सिनकोप भी होता है, इतना ज़्यादा पसीना निकला कि लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर बहुत ज़्यादा हो गया। अब इतना ज़्यादा जब सोडियम और वाटर लॉस हो जाएगा बॉडी से, तो क्या हो जाएगा? सेरिब्रल हाइपर परफ्यूजन। तो इसमें क्या? हाइपोटेंशन हो जाएगी। शरीर में पानी नहीं रहेगा तो हाइपोटेंशन होगी, फिर सिनकोप, आदमी बेहोश हो गिर जाएगा। सो हीट स्ट्रोक, ये दिस इज़ फैटल। सो फीचर्स क्या हैं? बॉडी का कोर टेम्परेचर 40 से ज़्यादा, CNS डिसफंक्शन। क्लिनिकल फाइंडिंग क्या है? स्किन कैसी हो जाएगी? सूखी हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, ड्राई एंड हॉट, एंड स्वेटिंग इज़ यूजुअली एब्सेंट। अब जब शरीर में पानी नहीं रहेगा तो स्वेटिंग कहाँ से होगी? क्योंकि ये तो फैटल है ये तो। अब ऑटोप्सी में पोस्टमार्टम कैलोरीसिटी वी आर गोइंग टू। सो पोस्टमार्टम कैलोरीसिटी वी आर कहाँ हमको मिलेगी? मिलेगी हीट स्ट्रोक में मिलेगी। नेक्स्ट, बर्न। नेक्स्ट इज बर्न। मिनिमम 44 temperature 40 degree temperature for 5 to 6 hours, and this is called burn. Body temperature increased, decreased duration. Burn versus scalded, जलना और scales. Next, charring and singeing is present, and scald में shedding and bleaching skin, अल्सरेशन, लाइनिंग ऑफ ब्लिस्टर, स्प्लैशिंग, क्लॉथिंग। ये हो गया। इसमें ये सब एब्सेंट है, सिर्फ एक चीज़ है, चेयरिंग एंड सिंजिंग एंड क्लॉथिंग इज बर्न। इसमें क्लॉथिंग मतलब कपड़े इसमें जल जाएंगे बर्न में, इसमें नहीं जलेंगे। ठीक, बाकी ये सब एब्सेंट है और इनमें ये सब प्रेजेंट है। ब्लिस्टर भी जो है, लाइन ऑफ ब्लिस्टर हो जाएगा, स्प्लैशिंग भी बन जाएगी, सॉर्डिंग और ब्लांचिंग और ये सब। नेक्स्ट, नोट ऑफ केमिकल बर्न। केमिकल बर्न पढ़ते हैं, इसमें अल्सरेशन प्रेजेंट होगा, ब्लिस्टर नहीं होंगे। एस्टिमेशन ऑफ बर्न सरफेस एरिया, इसमें रूल ऑफ 9 लगेगा। रूल ऑफ 9, वेलेस रूल ऑल्सो कॉल्ड रूल ऑफ वेलेस, रूल ऑफ 9, LUND एंड Broders chart, best for children. Rule of palm, size of burnt area, size of palm approximately 1%. कैसे? अभी देखिए, इसमें देखते हैं। ये देखिए, अपर लिम्ब है, आर्म 2%, फोर आर्म 1.5%, palm is 1%. So this is 4.5 plus 4.5 also called, so 9. This arm becomes 9. This is our abdomen, 9 plus 9, thigh 5, leg 3%, foot. So children, so this is how. Next, autopsy finding in antemortem burns. Non-specific finding, हीट आर्टिफैक्ट्स। इसमें क्या? हीट स्टिफनिंग हो जाएगी, मसल एक्सपोज टू हीट मोर देन 65 डिग्री, प्रोटीन कोआगुलेशन एंड स्टिफनिंग, ऑल्सो नोन एज बॉक्सर एटीट्यूड, एंड दिस इज
defensor and defense attitude. Heat rupture, skin exposed to the heat, cracking and splitting of the skin. Difference from the incised wound and large and irregular intact vessels. So this is you see cracking and splitting of the skin. Heat hematoma, गर्मी, सो एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस में ब्लड क्लॉट, चॉकलेट ब्राउन एंड हनीकॉम्ब अपीयरेंस. हीट हीमेटोमा, चॉकलेट ब्राउन एंड हनीकॉम्ब अपीयरेंस ये देखने को मिलेगा. हीट फ्रैक्चर, फ्रैक्चर ऑफ लॉन्ग बोन, स्कल बोन, लॉन्ग बोन फ्रैक्चर, स्ट्रीट एंड एवेन्यू फ्रैक्चर, स्कल बोन फ्रैक्चर, सुपर स्पाइडर वेब फ्रैक्चर, स्कल बोन में स्पाइडर वेब फ्रैक्चर बनेगा. नेक्स्ट स्पेसिफिक साइन, सो फीचर ऑफ एंटीमॉर्टम बर्न. एक्सटर्नल साइन क्या होगा? क्रो फिट साइन मिलेगा, फ्लूड इन ब्लिस्टर, इन्फ्लामेशन साइन, रेडनेस, एंजाइम बढ़ जाएंगे. तो न्यूमोनिक इज फायर, fluid in blister, inflammation signs indicate healing, redness, red line, enzymes will increase. You see redness and red line, blister. The mnemonic is fire. So this is crow feet sign. This is crow feet sign, and here it is crow feet sign. So deposition through the face, sparing of the skin around the eye, crow feet. Internal sign is 4 C's: carbon deposition, cyanide, carboxyhemoglobin and curling ulcer. इंटरनल साइन में क्या क्या मिलेंगे? कार्बन डिपोजिशन हो जाएगा, साइनाइड और ये सब, और कर्लिंग और कार्बन जो डिपोजिशन इन द एयरवे. Next, electrical and lightning injuries. Electrocution, factor affecting type of AC more harmful than AC current is more harmful than DC current. This was the MCQ. And voltage, amperage, hold on effect 15 to 20 ampere. Tentative hold on spasm death, directly proportional to magnitude of injury. Resistance, inversely proportional to the magnitude of injury. Dry skin, maximum bone, moist skin, no entry wound. And cause of death is cardiac arrhythmia, most common. Cardiac arrhythmia most common, and also cause of death could be respiratory failure, electrical injury में. Next, electrical injury burns of low voltage current, burns of high voltage current. लो वोल्टेज करंट में क्या होगा? जूल बर्न बनेगा, मतलब ऐसे टाइप के जूल बर्न. एंडोजिनस बर्न भी कहते हैं इसको. सेंट्रल डिप्रेस्ड एरिया, पेरिफेरल रेज्ड मार्जिन, और मेटलाइजेशन, डिपोजिशन ऑफ मेटालिक आयन इन द एंट्री वुंड. फ्लैश बर्न इसमें मिलेगा, डिफ्यूज बर्न, क्रोकोडाइल बर्न और मल्टीपल पंक्चर्ड लीजन्स. सो ये हो गया आपका. नेक्स्ट, लाइटनिंग इंजरीज. इसमें फिलिग्री बर्न है. फिलिग्री बर्न, इनके इमेजेस देख लीजिएगा. फिलिग्री बर्न में लाइटनिंग पूरी बॉडी में पिंकिश टाइप का हो जाता है, तो ऑल्सो नोन एज लाइकेनबर्ग मार्किंग एंड एवरोरेसेंट बर्न, फर्निंग, एंड दिस वन इज Chirionographic marking. These are the torture methods. अब टॉर्चर मेथड मतलब कान के पास मारा,
स्लैपिंग ओवर ईयर्स रिपीटेड, टेलीफोना हो गया। फलंगा और बस्टिनाडो, ये पैर में लगातार मारते रहे, सोल्स में रिपीटेडली। और 100 हॉर्स मतलब ऐसे टाइप में बिठा दिया, फोर्स स्ट्रेडिंग, दिस इज 100 हॉर्स। एंड दिस इज सबमरीन, मतलब प्लास्टिक बैग को मुंह में ऐसे रखा तो सबमरीन, ड्राई सबमरीन, दिस इज कॉल्ड ड्राई सबमरीन। प्लास्टिक बैग से एस्फिक्सियल। और अगर पानी में डुबा करके फोर्स्ड इमर्शन ऑफ द हेड अंडर वाटर, पानी में डुबा करके वो किया मारा तो वेट सबमरीन हो गया। पूरी बॉडी को अगर पानी में डुबा दिया तो डंकिंग कहलाएगा। अभी नेक्स्ट हो गया एल प्लैंटन, प्रोलॉन्ग्ड, बहुत लंबे समय तक खड़ा रखा, प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग, तो प्लेटन हो गया एल प्लेटन। कैटल्स प्रॉड, इलेक्ट्रिक शॉक टू द जेनाइटेलिया। नेक्स्ट हॉट टाइंग, so tying the wrist and the ankle together in prone position. Waterboarding, मुंह में रुमाल रख के और पानी ऊपर से डाले तो वाटर इज पोर्ड ओवर द क्लॉथ कवरिंग इन द फेस, दैट इज एस्फिक्सिएशन। सो एस्फिक्सिएशन हो गया, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टाफिडोला कोनरिया एंड पेलेस्ट्रियन हैंगिंग, मतलब सस्पेंशन ऑफ द विक्टिम बाय द रिस्ट, रिस्ट से सस्पेंशन कर दिया तो ये बना, इसको कहेंगे स्ट्रैपैडो और बनाड्रा एंड पैलेस्टीनियन हैंगिंग। नेक्स्ट पैट्रियट्स पैच, टाइंग अपर एंड लोअर लिम्ब विद सस्पेंशन ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट म्यूसिलियागो, सस्पेंशन ऑफ द एंकल, मतलब एंकल से सस्पेंशन टांग दिया तो म्यूसिलियागो हो गया। ब्लैक स्लेव को कैसे करते थे काले लोग को, पहले इंसर्शन ऑफ द हॉट मेटल रॉड इनटू द एनस, हॉट मेटल रॉड को एनस में, ये ब्लैक स्लेव के हाथ पहले करते थे। बिलेरी, पुटिंग अ चिली पाउडर इनटू द एनस। बेलेना क्या है, बेलेना है रोलिंग अ हैवी स्टिक ओवर द थाई एंड लेग्स, दिस इज कॉल्ड बेलेना। बेलन को पैर में रगड़ते थे, मतलब हैवी स्टिक लेकर के, तो बेलेना हो गया। एक्सप्लोजन ऑफ द इंजरी, टाइप्स, एयर ब्लास्ट, अंडर वाटर ब्लास्ट, सॉलिड ब्लास्ट। अब ब्लास्ट पढ़ लेते हैं, बम फूटेगा। अगर हवा में बम फूटा तो क्या होगा, पानी के अंदर फूटा तो मतलब जीआईटी में इंजरी, पेट के अंदर भी है ना, तो जीआईटी में इंजरी हो जाएगी। सॉलिड में क्या होगा, बाहर फ्रैक्चर हो जाएगा। कैसे, ये ब्लास्ट इंजरी प्राइमरी होगी, सेकेंडरी होगी, टर्शियरी होगी। अब देखिए इसमें, दिस वन, लेट्स सी दिस वन। सो दिस इज प्राइमरी ब्लास्ट, यहाँ पे बम फूटा तो पहले उसके ब्लास्ट वेव आएंगी, तो ब्लास्ट वेव हो गया प्राइमरी इंजरी। सेकेंडरी इंजरी क्या है, इसके फ्रैगमेंट्स आके लगेंगे, तो ये सेकेंडरी इंजरी। टर्शियरी इंजरी क्या है, बॉडी हवा मोड़ के नीचे गिरेगी तो बॉडी डिस्प्लेसमेंट होगी, ये टर्शियरी। और फिर बॉडी जब उड़ने के बाद जब नीचे ज़मीन में गिरेगी तब ये हो जाएगा क्वाटरनरी। तो प्राइमरी क्या है, ब्लास्ट वेव, मोस्ट कॉमन क्या हो, कान फट जाएंगे, फिर लंग भी फटने के, लंग फट जाए क्या पता, ब्लास्ट लंग हो जाएगा। सेकेंडरी हो क्या, मोस्ट कॉमन हो गया, फ्लाइंग मिसाइल, प्रोजेक्टाइल, वो जो मिसाइल की तरह उड़ते हुए जो, या मिसाइल के जो प्रोजेक्ट, जो बम फटा है उसके जो वो है, और बाकी सब चीज़ें उड़ते हुए आके लगेंगी, सेकेंडरी हो गया। इसमें मार्शल ट्रायड चलता है, क्या होगा मार्शल ट्रायड, एब्रेजन, कंट्यूजन, लेसरेशन, ये भी पूछा जा सकता है मार्शल ट्रायड। अब टर्शियरी, इसमें विंड विक्टिम डिस्प्लेसमेंट, हवा के कारण जो आदमी डिस्प्लेसमेंट होगा टर्शियरी हो गया। और क्वाटरनरी में मिसलेनियस, ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया और बर्न। सो दिस इज वाज द टॉपिक फिनिश्ड। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, अगर आप यहाँ तक रुके हैं मतलब मैं समझ रहा हूँ कि बहुत बहुत थैंक यू आपको। एंड स्टे हेल्दी,
stay grounded and be happy. Thank you very much.